असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय. Lead us from unreal to real. Lead us from darkness to the light. Lead us from the fear of death to the knowledge of immortality. This feature is dedicated to the loving memory of Mr. Raghunath Bhatwal. Namaste and welcome to Trailblazers. Have you heard of the story of the mythical bird Phoenix? Phoenix is a beautiful mythological bird that rose from its own ashes. This bird has always been the symbol of undying spirit. It has inspired many underdogs to come back, to return from their point of defeat and to rise to the pinnacle of success. Today, we are going to meet Mr. Rajesh Bhatwal, who represents the true spirit of Phoenix through his journey of struggles and success, a journey that he chose to name Phoenix. His company that symbolizes his grit and passion to rise up from every failure and never give up. It is also an organization that has instilled hope for many underprivileged souls, a man and an organization with a difference. Mr. Rajesh Bhatwal. We are Agrawals. And my great grandfather माइग्रेट हुए राजस्थान से दुलिया, और तब से हम चौथी पांचवी जनरेशन अभी हम दुलियावासी हो गए. मेरे पिताजी की उनकी बहुत इच्छा थी इंजीनियरिंग करने की, लेकिन उस टाइम मेरे दादाजी के पास सपोर्ट के लिए उनको रुकना पड़ा दुलिया में. धीरे धीरे वो इंडस्ट्रीज में आए. उन्होंने पहली शुगर फैक्ट्री कन्नड़ में लगाई, शुगर इंडस्ट्री जिसको हम खानसर यूनिट कहते हैं. 4 शुगर इंडस्ट्रीज लगाई. उसके बाद में ऑयल मिल्स, रिफाइनरीज, solvent extraction plant, even a pharmaceutical unit which used to manufacture IV fluid. इस तरीके के डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस मेरे पिताजी ने और उनके भाइयों ने साथ में मिलके वो बनाते गए, और इतना ज्यादा मैं उनसे प्रभावित रहा हूँ. स्पेशली मैं कहूंगा कि मेरे गाइड और मेरा आइडॉल जो है वो मेरे पिताजी है. मैं लगभग 6वीं या 7वीं क्लास में होऊंगा, लेकिन करीबन उस उम्र में मेरे दिमाग में फिक्स था कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में करना है. राजेश मेरे से बहुत छोटा है. मेरी शादी हुई जब वो 9th में पढ़ता था, और मैं उसकी सबसे बड़ी बहन हूँ. और राजेश छुट्टियों में मैं यहाँ आता था उज्जैन आने का, उसको शौक था. उसके जियाजी से बहुत पढ़ती थी. यहाँ आता था तो मैं वो हमेशा उसको काम का बचपन से ही शौक था. वो ऐसे मतलब खाली नहीं बैठता था कि घर में बैठ गया कि खेल रहा है. मैं उसको बोलती थी तू उज्जैन आया और घर में मेरे पास रुकता भी नहीं है. तो बोले नहीं दीदी, मेरे को दुकान पे काम करना अच्छा लगता है, मैं सीखूंगा. एक बार इनको कहीं बाहर जाना था जरूरी, तो परेशान हो रहे थे कि मेरी सीट पे कौन बैठेगा. तो जिया जी आप परेशान मत हो, 2 दिन मैं आपकी सीट अच्छे से संभाल लूंगा, आप बेफिक्र होके जाइए. और उसने इतने अच्छे से संभाला कि उसके जिया जी ने आके बोला कि राजेश तूने तो इतना अच्छा संभाला कि मेरे को तो लगता है मैं तेरे को भेजू ही नहीं वापस. राजेश भाई के साथ तो मेरी बहुत अच्छी याद है. जैसे मैं तो उसकी परछाई बन के ही घूमती थी उसके पीछे पीछे हमेशा. Track the biggest movers of the day. Stocks that are the biggest winners and the biggest losers. Stocks that markets are talking about. Get the sharpest and most insightful analysis from fundamental to technical. Catch market movers. Presented by BSC, Investors Protection Fund. Associate sponsor, Healthcare Global Enterprises Limited, specialist in cancer care and fertility treatment. आम की मिठास अब और भी खास. सिप इंडिया सिप, मैंगो सिप. We get you a holistic view of the day's trading, The highs and the lows. and the day's most significant stories. We are seeing that subdued reaction in stocks. Keeping an eye on every aspect that drives market.
Get all that you need to know as the trading day comes to a close. In association with Skoda, Best in Next Class. Associate sponsor, Healthcare Global Enterprises Limited, specialist in cancer care and fertility treatment. In the ever-changing world of business, keeping up with every move, every update is essential. with stories that shape our economic backdrop, A deep understanding of market activity. and expert views that help you gauge the story better. Get the most vital information. From the business world and beyond. Powered by BSC, Investors Protection Fund. Inspired by his father and generations before him, Rajesh dreamed of being a businessman. The desire to be an entrepreneur was a natural one. But before that, he had another dream, to be an engineer. To fulfill his desire to become an engineer, Rajesh left his beloved town Dhule and headed to Mumbai in 1979 for his higher education after school. 10th के बाद में मैं बम्बई गया। या तो हालांकि मैं कहूँगा कि मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि 11th आपको बम्बई से ही पढ़ना है, जबकि आई वाज नॉट रियली वेरी प्रिपेयर्ड, बट आई वाज सेंट टू द हॉस्टल फॉर 11th 12th एंड आई देन फर्दर स्टडीड इन केसी कॉलेज फॉर 2 years एंड दैट टाइम वाज वेरी टफ फॉर मी। उस टाइम को मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था, एडजस्ट नहीं कर पा रहा था अपने आप से, काफी होमसिक था और आई वाज फाइंडिंग इट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ओवर देयर। लकीली टेबल टेनिस जो मैंने स्कूल टाइम में काफी खेला था, जिसका मुझे बेनिफिट मिला, देयर वर सम टूर्नामेंट्स, आई पार्टिसिपेटेड एंड आई वन दोस टूर्नामेंट्स एंड देन मुझे काफी दोस्त मिले, काफी लोगों से मेरी पहचान हुई और वो हिसाब से फिर मैं धीरे धीरे बम्बई में सेटल होने लगा। Rajesh was a small town boy at heart, and it was difficult for him to get used to the fast pace of the big bad city of Mumbai. In Dhule, he had studied in the vernacular language. The sudden switch to English as the instruction language proved a little more difficult than he had anticipated. Living away from his family in the hostel was lonely, and all these changes overwhelmed him. There was a sharp decline in his grades. Doors to good engineering colleges closed for him. Disappointed, he returned to Dhule and got admission in the BSc course. Unfortunately, 12th में मुझे जितने मार्क्स एक्सपेक्टेड थे उतने नहीं मिल पाए। I got lesser marks than my academic records till that time, and I couldn't get admission into engineering. मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मुझे वो पॉसिबल नहीं हुआ। अब मैं फिर से धुले आया, मैंने यहाँ पर 1 साल बीएससी में एडमिशन लेके 1 साल बीएससी किया और उसके बाद मुझे इंजीनियरिंग में मेरा नंबर लगा और मुझे रामराव अधिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग न्यू बॉम्बे में एडमिशन मिला इंजीनियरिंग में और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग बॉम्बे में कंप्लीट किया। आई एम रियली प्राउड एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि मैं रामराव अधिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, फर्स्ट बैच। उस टाइम हमारा कॉलेज जो शुरू हुआ था, छोटा सा कॉलेज था, हम फर्स्ट बैच के बच्चे थे और उस कॉलेज को पूरा बनाने में हमारी जो मैनेजमेंट थी, श्री डीवाई पाटिल साहब हमारे चेयरमैन थे और मैं कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, तो हम लोगों ने साथ में काम किया, बहुत काम किया कॉलेज में। 12th के बाद मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ली तो मैं रामराव अधिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कॉलेज में एडमिशन लिया। उस टाइम पे मेरी मुलाकात राजेश से हुई, वो उस कॉलेज के जीएस थे, तब हमारी जान पहचान हुई, फ्रेंडशिप हुई और उनकी लॉयल्टी, उनकी जिद वो काफी इम्प्रेसिव रहा है। Rajesh completed his engineering course. The desire to be an entrepreneur still burned strongly in him, but he wasn't sure about the kind of business he wanted to do. His father, Mr. Raghunath Bhatwal, had always been his biggest source of inspiration. His father questioned him about his goals in life. Instead of answering him in words, Rajesh replied with action. मेरे 5th सेमेस्टर के बाद मैं दिवाली छुट्टी में घर पे आया था और मेरी बातचीत पिताजी के साथ चल रही थी और एक सवाल उन्होंने उसके बाद मुझे किया, वो ये था कि आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद क्या करने वाले हो। इट वॉज अ शॉक टू मी बिकॉज मैंने कभी विचार ही नहीं किया था कि इंजीनियरिंग के बाद क्या करना है। उस टाइम मेरा गोल एक ही था कि मुझे इंजीनियरिंग करना है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि यू हैव टू बी थिंकिंग फॉर योर करियर राइट फ्रॉम नाउ, वेयर आई शुड बी थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर एंड आई शुड बी अकॉर्डिंगली स्टार्ट मूविंग। मैंने उनको कहा ठीक है, मेरे पास आज तो जवाब नहीं है लेकिन मैं सोच के आपको बताऊंगा।
और उसके बाद में आई स्टार्टेड थिंकिंग एंड आई रियलाइज कि मुझे मेरे ही क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ काम करना है और डेफिनेटली मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट होना है, मुझे कुछ काम करना है इंडस्ट्री में। In 1986, when Rajesh started out, surveying was not an easy proposition. In order to identify the product, Rajesh had to invest many weeks in door-to-door surveys. He tabulated the result for nearly 12 to 15 products before he could finalize 2 or 3 likely options. Finally, he decided to go ahead with the electronic weighing scale. मैं सवेरे लगभग 6:30-7 बजे मेरे हॉस्टल से निकलता था एंड आई यूज्ड टू कम बैक एट 11 o'clock एट नाइट। तो सारा मार्केट सर्वे जो मैंने खुद पर्सनल लेवल पे किया, काफी क्वेश्चनियर्स बनाए, काफी लोगों को मैंने विजिट किया, पूरे बम्बई में अलग अलग जगह पर मैं जाता था और लोगों से मेरे प्रोडक्ट वुड बी प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत किया करता था। और उस मार्केट सर्वे में मुझे ये समझ में आया, फिर मैं एलिमिनेशन मेथड से गया, तो आखिरी में 2 प्रोडक्ट के ऊपर मैं लगभग स्टकअप हुआ। एक था इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, रिमोट कंट्रोल्ड जो हम देखते हैं टॉयज जो बच्चों के लिए बनती है, और दूसरा था इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल। इलेक्ट्रॉनिक टॉयज के ऊपर मेरा पर्सनली ज्यादा इंक्लिनेशन था, लेकिन ये जब मैं सर्वे कर रहा था, वो बात आज से लगभग 30 साल पहले की बात होगी, तो उस सर्वे में मुझे ये प्रतीत हुआ कि अगर कोई शॉपकीपर या छोटा व्यवसायिक अगर कोई है, तो वो अपने बच्चे के लिए उस जमाने में 500, 700 या 1000 रुपए का इलेक्ट्रॉनिक टॉय लेने के लिए 4 बार सोचेगा। लेकिन उसके व्यवसाय के लिए अगर उसे काटा चाहिए, वेइंग स्केल चाहिए, दैट कुड बी प्रॉब्ली कॉस्टिंग यू 15,000 रुपीज, लेकिन उसमें उसको रिटर्न है, रिफंड है, तो इसके लिए उस चीज को वो प्रिफर करेगा रादर देन गोइंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक टॉय फॉर हिज चाइल्ड। तो उस जमाने में मुझे ऐसा लगा कि इलेक्ट्रॉनिक वेइंग, ये वजन करने की जो प्रक्रिया है वो इतनी फिनोमिनल है, मतलब हर जगह पे उसका यूज है, राइट फ्रॉम किचन टू डॉकयार्ड्स टू इंडस्ट्रीज, लैबोरेटरीज एंड सो मेनी वेरियस काइंड ऑफ एप्लीकेशंस। तो उस टाइम मेरा सर्वे का ये मुझे एक आउटपुट ये मिला कि अगर मैं एप्लीकेशन वाइज अलग अलग अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल के मॉडल्स अगर मैं फ्यूचर में बना पाया, तो वेइंग ये फिनोमिनन वर्ल्ड में से खत्म हो ही नहीं सकता। वजन के बिना ट्रांजैक्शन होना बहुत मुश्किल है, तो शायद इस फील्ड को आगे बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा। ये सोच के आखिरी में फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल से शादी करना पक्का किया। उन्होंने जब बात कही कि हम कुछ वेइंग स्केल के बारे में मैन्युफैक्चर करने के, तो मैंने वो कांटे बनाने वाला है तो वो बोला हाँ यस। देन आई टोल्ड हिम दैट प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज कितने कांटे बेचेंगे, ग्रोसरी शॉप जितने हैं उतने वो लोग लेंगे, उसके बाद में आई मीन दिस बिजनेस माइट रन फॉर 3-4 years, 5 years. He listened to me, but he was so confident. He said, नहीं, this is the entry point and this can expand to any level. आज जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो I was wrong, he was right. And not only weighing scale, he added so many things to weighing scale. Rajesh, being from a business background, he was always firm about starting a venture on his own. And at that time, he asked me, he made me an offer. He said, I would like it if you could join me and we start business together. I said, why not? I mean, because I was not too sure about what exactly I wanted out of life. So well, I said, why not? Let's start. And I have never regretted it. Where there's a will, there's a way. But finding that way was obviously not easy for Mr. Batwal. Now he knew what he wanted to make, but he didn't know how to. He set himself on the path of searching for the perfect method to create electronic weighing scales that would meet the international standards. His search for the critical design component for his scales led him to Hong Kong. तो उस जमाने में मुझे हांगकांग और ताइवान जो मैंने इनिशियल लेवल पे कम्युनिकेशन किया था, वहां जाकर मुझे मटेरियल खरीदना था या उनके सैंपल्स मुझे अप्रूव करने थे। तो उस हिसाब से मैं उस जमाने में हांगकांग और ताइवान की मैंने ट्रिप्स की और मेरे पास में फंडिंग नहीं था, तो वो भी काफी एक डिफिकल्ट पीरियड रहा कि जब आप फॉरेन कंट्री जाते हो और आपके पास में एक $5-50 भी एक्स्ट्रा नहीं होते हैं, तो किस तरीके से आप मैनेज करते हो, वो सारा जो हार्डशिप और वो पीरियड था, I had to really face it and understand how exactly one has to manage as a young or the new entrepreneur
आई वेंट थ्रू दैट। उस टाइम पे मुझे करीबन 1,17,000 रुपए का लोन चाहिए था, मुझे आज भी याद है। और वो लोन पास करवाने के लिए मुझे काफी कुछ मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाई है, ये सारी चीजें मुझे सीखनी पड़ी। और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने बनाया था उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक वजन स्केल की जो कीमत मैंने बताई थी, सेलिंग प्राइस जो मेरी थी, वो करीबन 14-15 हजार रुपए के आसपास थी। तो हमारे जो बैंकर्स थे उनका एक ही क्वेश्चन था कि इस प्रोडक्ट में इतनी ज्यादा कॉस्ट है तो इसको आप सेल कैसे कर पाओगे। और वो ही कन्विंस करने के लिए मुझे करीबन 14 महीने लगे। मुझे 3 या 4 बार उनके जोनल ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाना पड़ा। और आखिरी में मैं एक डिप्रेशन वाले फेज में आ गया कि शायद मेरा लोन पास नहीं होगा और मैं शायद यूनिट शुरू नहीं कर पाऊंगा। उसी टाइम पे लकीली लास्ट मोमेंट पे मेरा लोन पास होने का मुझे लेटर मिला और उस तरीके से मैंने काम आगे बढ़ाया। आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो अब मुझे मेरे मंजिल की तरफ बढ़ने का मौका मिल रहा है। मशीन तो मैंने बना लिया। अब जब उसको मैं मार्केटिंग करने निकला तो मुझे सही में ये पता चला कि ये बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि सबसे पहले लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वजन काटा चीज क्या ये मालूम नहीं है। सो इट वॉज अ कंसेप्ट सेलिंग रादर देन प्रोडक्ट सेलिंग। दूसरी, कीमत में बहुत ज्यादा फर्क था। जैसे मैंने बताया कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक कांटे में काफी फर्क था। मैं करीबन 50-60 हजार रुपए की मेरी खुद की पूंजी जो मेरे फ्रेंड्स से या मेरे रिलेटिव से मैंने जमा की थी और बैंक का 1,17,000 रुपए का लोन, उसके ऊपर मैंने मेरा प्रोजेक्ट शुरू किया था। और मैं मिला के मेरे यूनिट में 3 ही लोग काम करते थे। सागर सामंत नाम का इंजीनियर मेरे साथ था और सुरेंद्रन पिल्लाई नाम का एक हमारा जो मैनेजर था वो मार्केटिंग देखता था। एंड आई वाज वर्किंग एज अ मे बी मैनेजिंग पार्टनर दैट टाइम एंड ट्राइंग टू हैंडल एवरीथिंग। To bridge this gap, Rajesh went from village to village giving product demonstrations. He sold 74 units in the first year. The company suffered a major loss. Rajesh realized he needed to change his strategy. He decided to go out on a limb and offered the small scale grain dealers these weighing scales on a trial basis for some time. He knew that once they saw its benefits and ease of use, they would be convinced about purchasing it. His bold experiment worked. मैं लिटरली एक मशीन पहले बना के असेंबल करके आई यूज्ड टू गो ऑन द स्ट्रीट ऑन द हाईवे एंड आई यूज्ड टू जस्ट टेक अ लिफ्ट फ्रॉम एनी ऑफ द ट्रक्स बिकॉज मेरे पास डेस्टिनेशन कुछ नहीं था. So then I used to get down at that particular location, maybe say Amarnagar, and I used to give street demonstrations of my product. किसी को रिक्वेस्ट करो इलेक्ट्रिक का, उससे क्या कहते हैं कनेक्शन ले लो, अपने मशीन में लगाओ. और जैसे आप देखते हैं कि लोग रस्तों पे माल बेचते हैं, सड़क पर माल बेचते हैं, उस तरह 100-150 लोग मुझे घेरे हुए हैं और मैं मतलब बिल्कुल सब कुछ भूल के मेरा प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ. इस टाइम का, उस वक्त का मेरा करियर का शुरुआत था सेल करने के लिए. और लोग इसलिए ज्यादा गर्दी करते थे कि इलेक्ट्रॉनिक वजन काटा कुछ होता है जो कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था, देखा नहीं था. इट्स अ कंसेप्ट इन द इंडियन मार्केट. मुझे अच्छे से याद है 2-2, 3-3 महीने में घूमता था, तब जाके कोई एक हाथ काटा मैं बेच पाता था. उससे फिर जो भी मुझे पैसे मिलते थे वो लेके घर पे आके मैं पहले म्यूजिक लगा के डांस करता था. और उस जमाने में मेरे घर पे इतना जिसे कहते हैं एक्साइटेड एनवायरमेंट हो जाता था कि मेरी सारी सिस्टर्स, माय मदर, ऑल ऑफ अस यूज्ड टू रियली एंजॉय कि चलो इसका एक काटा आज बिका है. लेकिन जो मजा वो पीरियड में था वो तो मैं कहूंगा आज भी नहीं है. इट वॉज एब्सोल्युटली अ टेस्ट पीरियड फॉर मी. एक ऑर्डर भी जब भी उनको मिल जाता था तो घर पे आके हम गाना लगा के और डांस करते थे दोनों भाई बहन. तो पापा बोलते थे तुम एक मशीन के ऑर्डर में क्या इतना खुश हो रहे हो, तुमको ऐसा तुम्हारा फैक्ट्री चलना चाहिए कि पूरा गोडाउन भरे हो और गोडाउन पूरे भरे हो और ऑर्डर आने से पहले ही तुम्हारी सब मशीन्स तैयार हो. और आज राजेश भाई का वैसे ही काम चल रहा है, वो देख के बहुत खुशी होती है. Be integrated, wholesome, live by the laws of nature. Let your life be naturalized. Get Mikimai. Customers want an intelligent product. At the same time, they do want value for money. We saw a big gap in how service providers were being connected to service seekers. With that thought, we started Findia. We want to democratize fashion. Wooper is the fashion assistant for a young girl out there. You can be fashionable, comfortable at the same time. How do we stand out vis-a-vis others? It's the overall user experience that we have on our site. If you look at today's stock market, every company on that market was once upon a time a startup.
the ever-buzzing world of mid-caps. Staying updated is the key to making the right decisions. Track the eye-catching mid and small-cap stocks and find out what's really driving them. Get all that you need to know in the world of mid-caps. Associate sponsor, Healthcare Global Enterprises Limited, specialist in cancer care and fertility treatment. Money is what you do with it, how you use it to reach your goals. And our goal is to help you make the most of your money. Decode latest financial trends and build your investment portfolio with expert advice on all asset classes. Sharpen your financial instincts and get smart about your money. Gradually but steadily, the trend of using electronic scales set in. Seeing the success of the product with the ground level businesses, large-scale industries eagerly bought into Rajesh's idea of using electronic weighing scales. A business that started in 2 small rooms in a family-owned property, mushroomed into multiple production units across the entire country. हैदराबाद में मेरी एक बड़ी सिस्टर रहती है, तो हमारे जिया जी हैदराबाद में रहते हैं। उनकी मदद से मैंने एक छोटा सा ऑफिस मैंने किराए पर लिया और वहाँ पर मैंने कंपनी का पहला मार्केटिंग के लिए ब्रांच ऑफिस की मैंने वहाँ शुरुआत की। वहाँ पर लोकल न्यूज़पेपर में मैंने एडवर्टाइज देके इंटरव्यू कंडक्ट करने चाहे। तो उसके 6 महीने बाद मैंने इंदौर में दूसरा ब्रांच ऑफिस मैंने शुरू किया। 2 ब्रांच ऑफिस की वजह से हमारा सेल जबरदस्त बूस्ट होने लगा और हमें ग्रोथ मिलने लगी। उसके बाद में 2 से 2.5 साल के पीरियड में मैंने दिल्ली से लेके कोचिन तक और गुजरात में द्वारका से लेके कोलकाता तक करीबन 2 से 2.5 साल में कंटिन्यूस टूर पे रहा और मैंने 62 ब्रांच ऑफिसेस कंपनी के उस टाइम मैंने स्थापन किए। और वो एक पीरियड था 92 से लेके आगे, एवरी ईयर कंपनी का टर्नओवर पिछले साल से 2.5 गुना बढ़ रहा है, 3 गुना बढ़ रहा है। और उसके बाद में एक दौर ऐसा आया, एक लेवल पर जाकर हमारी प्रॉपर सिस्टम या जिसे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स कहते हैं, वो हमारे पास में कुछ एस्टेब्लिश नहीं थी, जिसकी वजह से हमें काफी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। काफी लोग परिस्थिति का फायदा उठा के पैसे हमारे जो है कस्टमर से जो पैसे आते थे वो खुद रख लेना, इस तरीके के स्कैंडल्स बढ़ गए। और दिन में करीबन 18 से 20 घंटे अथक काम करने के बाद भी एट द एंड ऑफ द डे मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और यहाँ पर मुझे प्रतीत हुआ कि मुझे कोई ना कोई प्रोफेशनल मैनेजमेंट हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लाना होगा और कहीं ना कहीं मुझे एडिशनल कुछ सीखना पड़ेगा। और उसी उलझन में मैं एक दिन बैठा हुआ था और हमारे एक मतलब आज जो हमारे आईएसओ के कंसल्टेंट है, उस दिन मुझे जस्ट वो मिलने आए और पहली मेरी उनकी मुलाकात थी और उन्होंने कहा आईएसओ 9000 के बारे में मुझे काफी उन्होंने एक्सप्लेन किया और मुझे लगा कि वो जो भी कुछ मुझे कह रहे हैं वो हर चीज मुझे रिक्वायर्ड है एंड आई इमीडिएटली ऑप्टेड फॉर इट। उसके बाद में 6 महीने तक उन्होंने और उनके टीम ने और हमारी पूरी टीम ने मिलकर मेहनत की। आईएसओ क्या है ये सही ढंग से पढ़ा और 6 महीने में हमें आईएसओ 9001 का खिताब मिला। और आईएसओ 9001 इलेक्ट्रॉनिक वेइंग में मिलाने वाली उस टाइम पे हमारी पहली कंपनी रही। हर चीज डॉक्यूमेंटेड, प्रोसीजर्स डॉक्यूमेंटेड, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डॉक्यूमेंटेड एंड डूज एंड डोंट्स आर क्लियर। Today, Phoenix stands as the most trusted brand in electronic weighing scales in the market. Phoenix is the true emblem of Rajesh's entrepreneurial success and the journey he has traversed to reach this pinnacle. उस टाइम ऐसा एक अपॉर्चुनिटी आया कि यूएई में जाके हम अपना खुद का ब्रांच ऑफिस डालें और वहां पर अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करें। 98 में मैंने शारजा एयरपोर्ट फ्री जोन में अपना एक एस्टैब्लिशमेंट ऑफिस खड़ा किया, वहां पर लोगों को अपॉइंट किया। उस तरीके से उस ब्रांच ऑफिस को मैंने 4 या 5 साल के लिए मैंने लगभग उसको ऑपरेट किया। और उसके बाद में फिर से एक दौर ऐसा आया कि देयर वाज सम लैकुनास इन माय हेड ऑफिस एंड आई फेल्ट कि मुझे धुलिया और हेड ऑफिस को यहाँ पर रुकना जरूरी है, एवरी टाइम आई कैन नॉट मेक अप डाउन। तो उस टाइम पे वो ऑफिस मैंने यूएई का हमारा जो था वो वाइंड अप किया। लेकिन मेरे जो वहाँ साथी थे, जो मेरे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स थे, जो मेरे मैनेजर्स थे, उन्हीं को मैंने वहाँ अपने प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप देके, बिकॉज दे वांटेड टू स्टे बैक इन यूएई, और उन्हीं से हमारी कंपनी का कारोबार मैंने आगे बढ़ा के चालू रख के आई वाइंडेड अप माय ऑफिस एंड केम बैक टू इंडिया
for further growth of the organization? न्यूट्रांस इंजीनियर्स में मैं एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव ज्वाइन हुआ था और मेरा सेल्स देखते हुए उनके सपोर्ट के साथ में काफी मैंने अचीवमेंट्स किए और उधर ही मैनेजर बना। मैनेजर बनने के बाद में कंपनी के अंदर में वहीं पर मैंने मेरा करियर शुरू किया और उसके बाद में वहीं से आगे बढ़ता गया और काम करते करते मुझे कभी उन्होंने रियलाइज होने नहीं दिया या मैंने कभी महसूस नहीं किया कि ये कंपनी मेरी है और ये मेरी कंपनी मैं इसको ओन करूंगा दुबई में। जब जब मुझे जिंदगी में तकलीफ आई फाइनेंशियली या कोई भी मसले हो गए, आई हैव फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन एंड टुडे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से मैंने अभी ओवरकम कर दिए सारे प्रॉब्लम्स। आज मैंने उसके बाद में इंपैक्ट मशीनरीज चालू की बॉम्बे में, उसके बाद में मैंने एक फिनिक्स मशीनरीज चालू की कंपनी, फिनिक्स वर्सेटाइल कंपनी चालू की, डाइजेंटेक LLC चालू की। आज मेरे पास में 5 खुद के कंपनी इंटरनेशनल और एक इंडिया में कंपनी है एंड ऑल आर सक्सेसफुल बाय ग्रेस ऑफ गॉड। This is just because of the support of Rajesh Batwal. What I have learned is that there is no substitute for perseverance, no matter what. You work hard, you work dedicatedly, and things work out. Yes, things do work out, and that is what I have seen in him. Or Nitiraj, we have seen the ups and downs, taking loans, repaying them, had to have tight reins on all our expenses also, not having holidays for many years maybe because we are very busy, tied up with all things. But overall, it has been okay. Rajesh Batwal today stands as an example of grit, passion, determination and compassion. He has proven beyond doubt that being born in a business family is not the key to becoming a successful entrepreneur. It takes vision and commitment to turn ideas into an empire. At this point, I'm going to sign off, but next week, I'm going to share a lot more of Rajesh's journey with you all. Until then, goodbye. The e-commerce buzz has never